Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named The Age of the Mauryas. The Age of the Mauryas, what we are going to read in this chapter about Alexander's invasion and Mauryan dynasty, about the Mauryan administration and society, and decline of the Mauryas. Okay. The first empire of India was founded by Chandragupta Maurya. फर्स्ट एम्पायर जो था इंडिया का वो किसने फाइंड आउट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने. चंद्रगुप्त मौर्य से फर्स्ट डायनेस्टी शुरू हुई थी, दैट इज मौर्य डायनेस्टी. द एम्पायर कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया which include Bihar, Odisha, Bengal, western and northwestern India and parts of Deccan. In fact, excluding Kerala, Tamil Nadu and parts of northeastern India, Mauryans ruled over the whole of the Indian subcontinent. Moreover, all of the power was in the hands of the emperor who ruled from the capital Patliputra. ज़्यादातर इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द एम्पायर था वो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के अंडर था. नाउ अलेक्जेंडर इन्वेशन. क्या आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना है बच्चों? कौन अलेक्जेंडर कौन था? हाउ डिड ही कम टू इंडिया एंड इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री? अलेक्जेंडर इज रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज Alexander the Great. He is known for his conquest. He became the king of Macedonia, a powerful Greek state, in 336 BCE at the age of 19 years only. Alexander the Great के नाम से जो फेमस है वो मैकडोनिया का किंग था. 19 साल की उम्र में पावरफुल एक किंग बन गया था. वो एक इम्पॉर्टेंट ग्रीक स्टेट दैट इज मैकडोनिया का. And around 326 BCE, Alexander reached India through the Khyber Pass from the northwest. During that time, the Nanda were ruling over Magda. After a series of conquests, Alexander left India. However, before leaving India, he placed his governors in the conquered territories in northwestern India. Seleucus Nicator was the most important among them. Okay. अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया तो इंडिया में उस टाइम नंदा डायनेस्टी थी जो मगधा पर रूल कर रही थी. आफ्टर अ सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट, काफ़ी जीत के बाद अलेक्जेंडर ने इंडिया छोड़ दिया, लेकिन अपने गवर्नर को अपनी कॉन्क्यूर्ड टेरिटरीज में अपॉइंट करके, जिनमें से एक फेमस गवर्नर था सेल्यूकस निकेटर. नाउ मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से. अराउंड 321 BCE, an ambitious young man by the name of Chandragupta overthrew the Nandas and established the Mauryan Empire. He did this with the help of his mentor Kautilya or Chanakya. Kautilya was a minister in the court of Dhanananda, the last ruler of the Nanda dynasty. Nanda dynasty के last ruler को हटाकर कौन बनता है विजेता? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक यंग लड़का था जो किसकी हेल्प से ये युद्ध जीता था? कौटिल्य की हेल्प से. कौटिल्य जो मिनिस्टर था नंदा डायनेस्टी का. नाउ Chandragupta and Kautilya first attacked and conquered the outer parts of the Nanda kingdom, areas which had been weakened by Alexander invasion. जो इन अलेक्जेंडर के आक्रमण के कारण जो नंदा डायनेस्टी के जो एरियाज थे जो वीक हो चुके थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त और कौटिल्य मिलकर उन पर अटैक करते हैं और उनको जीत लेते हैं, जैसे पंजाब, मालवा एंड सुराशास्त्र. दे फाइनली कैप्चर्ड पाटलिपुत्र, द कैपिटल ऑफ मगधा, इन 321 BCE. Chandragupta then extended his empire up to the river Indus, taking back parts of Alexander Empire and laying the basis for the Mauryan Empire. और इस तरीके से Mauryan Empire शुरू हुआ. Alexander had left his Greek general, that is Seleucus Nicator, in charge of the eastern part of his empire. Seleucus was defeated by Chandragupta in 305 BCE and was made to surrender extensive territories, the areas of Kabul, Herat, Kandahar and Baluchistan. Seleucus also gave his daughter in marriage to Chandragupta, thus establishing peace between the two states. Alexander जो अपना एक
ग्रीक जनरल सिक्युलस निकेटर को छोड़कर गया था, चंद्रगुप्त मौर्य उसको भी हरा देता है और उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है। जितने भी सिल्यूकस निकेटर के अंडर टेरिटरीज थी वो सरेंडर कर देता है और अपनी बेटी भी मैरिज में चंद्रगुप्त से उसकी मैरिज करा देता है ताकि उन दोनों के बीच में पीस रहे, पीस रिलेशनशिप बना रहे। बाय द एंड ऑफ चंद्रगुप्त रूल द किंगडम ऑफ मगधा had became an empire. The Mauryan Empire now stretched from the Hindu Kush in the west to Bengal in the east and from the Himalaya in the north to the Narmada in central India. चंद्रगुप्त का जब तक रूल रहा तब तक जो मगधा था वो एक एम्पायर बन चुका था और एक मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि मौर्यन चंद्रगुप्त के टाइम पर मौर्यन जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा इंडिया में स्ट्रेच हो गया था। नाउ डिड यू नो Megasthenes, a Greek ambassador, stayed at Chandragupta court at Patliputra for several years. मेगास्थीन जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त के कोर्ट में काफ़ी टाइम तक रहा। उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी कुछ उसके लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में लिखा हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बिंदुसार। Chandragupta Maurya had embraced the Jain religion. He gave his throne to his son Bindusara. He himself settled at Sarvanlebal Gola, a place in Karnataka. Like a Jain Muni, he fasted into death. The hills where he lived and died is still known as Chandragiri. King Bindusara also ruled for about 25 years. Very little is known about his reign, but he maintained his vast empire in order. चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे बिंदुसारा को अपना सारा साम्राज्य दे देता है और खुद वनों में चला जाता है, हिल्स में चला जाता है। अभी भी जो कर्नाटका में हिल्स है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ होती है उन्हें चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसारा भी एक एफिशिएंट रूलर था जिसने 25 साल तक रूल किया, लेकिन उसके रीज़न के बारे में हमें बहुत कम पता है। बट पूरा जो एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने मेंटेन किया था, बिंदुसार ने उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया। डिड यू नो When members of the same family become rulers one after the other, the family becomes a dynasty. The Mauryan were the first dynasty of India. जब एक ही फैमिली के मेंबर एक के बाद एक रूलर बनते जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डायनेस्टी कहते हैं। ऐसे ही फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? मौर्यन डायनेस्टी। नाउ नेक्स्ट इज अशोका। Bindusara was succeeded by Ashoka and he is considered to be one of the greatest ruler of all time. Historians learned about Ashoka from inscriptions on pillars and rocks found in various parts of India. For a long time, most of the inscriptions could not be read as they were in a script that had gone out of use. A scholar named James Princip deciphered the script and identified it as Brahmi. The inscriptions provided invaluable information about the reign of a kind ruler named Ashoka and the extent of his empire. बिंदुसारा के बाद नेक्स्ट रूलर आता है अशोका, जिसको हम सब जानते हैं अशोका द ग्रेट। हिस्टोरियंस ने अशोका के बारे में कैसे पता लगाया है? जो अशोका एम्पायर के टाइम पे, अशोका जब रूलर था उस टाइम पे जो इंस्क्रिप्शंस बने हैं, पिलर्स बने हैं, उनसे हमें ये पता लगता है। वो सारी जो लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन या पिलर पर लिखी गई है वो ब्राह्मी लैंग्वेज है। अशोका इज नोन एज अशोका द ग्रेट फॉर हिज नोबल डीड्स। द बैटल ऑफ कलिंगा, नाउ नोन एज ओडिशा, वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। अशोका को अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ द नोबल डीड्स, बहुत उनके जो अच्छे काम थे उनकी वजह से। बैटल ऑफ कलिंगा की जो वॉर थी उसने अशोका की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया था। उस वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए थे जिनका दुख देखकर, जिनकी सफरिंग देखकर अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ था। हार्टली जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई थी और अशोका ने हमेशा के लिए फाइटिंग को छोड़ दिया था। ही बिकेम अ बुद्धिस्ट एंड डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ हिज पीपल। और हर चीज को छोड़कर, उन्होंने राजपाट को छोड़कर एक बुद्धिस्ट बन जाते हैं और अपनी सारी लाइफ लोगों की सेवा में लगा देते हैं। डिड यू नो
Kautilya's Arthashastra and Megasthene Indica are the most important source to know about the Mauryan administration. अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र और मेगस्थीन ने लिखी है इंडिका, इससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगती है. नाउ अशोका's धमा. Dhamma is the Prakrit form of the Sanskrit word dharam, which means religious duty. अशोका ने एक पॉलिसी शुरू की जो कि पॉलिसी ऑफ धमा के नाम से जाना जाता है. This became Ashoka's goal for the rest of his life. The Mauryan principles include non-violence, charity, mercy, truth, टॉलरेंस एंड प्योरिटी. कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने अपना रिलीजन चेंज किया, एक नया वर्ड निकाला धमा की पॉइंट व्यू टुवर्ड रिलीजन, जिसको अलग अलग चीज़ों को जो फॉलो करता है. मोरल प्रिंसिपल क्या थे धमा के? नॉन वायलेंस जो कि अहिंसा, दया भाव होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, रिलीजन दूसरों के रिलीजन को टॉलरेट करना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए. नाउ प्रिंसिपल ऑफ धमा, फर्स्ट इज अहिंसा और नॉन वायलेंस. अशोका फॉरबेड द किलिंग ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं मारना चाहिए. सेकेंड इज generosity towards all. Honesty and kindness should be practiced towards all, including servants. Everyone should be treated in a human manner. चाहे वो सर्वेंट्स हैं, चाहे कोई भी है, हर किसी के लिए मन में दया भाव होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए. सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए. People should be involved in charity in whatever form possible, giving money to the poor, imparting education or spreading the knowledge of the Dhamma. और हर एक लोगों को कुछ ना कुछ चैरिटी करते रहना चाहिए, चाहे वो पैसों की फॉर्म में हो, चाहे शिक्षा की फॉर्म में हो, या फिर लोगों को रिलीजन के बारे में नॉलेज देना. टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स, सभी रिलीजन को टॉलरेट करना चाहिए, सभी के रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. एंड पीपल शुड लव वन अनदर. ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स, हमेशा जो खुद से बड़े होते हैं या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उनको ओबे करना चाहिए. डिड यू नो एम्परर अशोका वॉज नोन एज Devampiya Piyadesi, meaning beloved of God and one who is blessed. He addressed his people as his children. Emperor अशोका को माना जाता था देवनम प्रिय की जो भगवान के प्यारे हैं या who is blessed, और वो सब लोगों को, सब बच्चों को, सब लोगों को जो भी उनकी प्रजा थी उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे. Now spread of Dhamma. Ashoka issued edicts, royal order to spread the message of Dhamma. He had his edicts engraved on pillar and rocks and set up in public places all over the empire. अशोका ने एडिक्ट यानी कि रूल, रॉयल ऑर्डर्स निकाल दिए थे ताकि धम्मा को लोग स्प्रेड कर सके, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा. और इन एडिक्ट्स को जगह जगह पर एनग्रेव कर दिया गया था, जैसे कि पिलर्स पर लिखवा दिया था, रॉक्स पर लिखवा दिया था. जो भी पब्लिक प्लेसेस थी वहाँ हर जगह अशोका ने अपने एडिक्ट्स को लिखवा दिया था. द एडिक्ट्स वर रिटन इन लोकल स्क्रिप्ट सो दैट जो कॉमन लोग थे वो इजीली उनको समझ सकें. नाउ अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड धर्मा महात्मास टू इंटरप्ट एंड कैरी आउट रॉयल ऑर्डर्स. और अशोका ने इस काम के लिए कुछ ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर रखे थे जो इन रॉयल ऑर्डर को लोगों तक पहुंचाते थे, जिन्हें धर्मा महात्मास बोलते थे. नाउ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी. The Mauryan Empire had an efficient administrative system. It functioned at 4 levels. First is central, second is provincial, third is district, fourth is village. First is central administration.
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंट्रल सुप्रीम अथॉरिटी होगा वो किंग होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं पूरे एम्पायर के वो किंग लेगा। एंड ही वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको मंत्रिपरिषद का नाम दिया गया। एक प्राइम मिनिस्टर एंड पुरोहित एंड सेनापति होंगे, जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल मिनिस्टर होंगे जो किंग को एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। हर एक जो प्रोविंस था वो एक मेंबर को दे दिया गया था गवर्न करने के लिए। एंड तक्षशिला, उज्जैन फॉर इंस्टेंस वर provincial capitals. Although the center had some control over the provinces, local rules and customs were also probably followed. The provinces were further divided into districts and villages. जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी प्रोविंस को लुक आफ्टर करेगी। उसके बाद फर्दर प्रोविंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिनको प्रदेश था वॉज द हेड ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें जूनियर ऑफिशियल्स होते थे जिनको युक्ताज एंड राजकुताज बोला जाता था। उनका क्या काम होता था? अपनी डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करना, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, लैंड की असेसमेंट करना और अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसी तरीके से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन थे। डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग विलेजेस में बांट दिया गया था। विलेज में अलग अलग ऑफिशियल जो थे वो अपॉइंट कर दिए गए थे ताकि वो विलेज में लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकें और टैक्स कलेक्ट कर सकें। नाउ पाटलिपुत्र, द कैपिटल सिटी। Patliputra, the capital, was walled city surrounded by high walls, a moat and watchtowers. The king lived in the palace. For administration of the city, there were committees for the purpose of Patliputra, जो कि एक surrounded by high wall city थी। उसमें अलग अलग काम हो रहे थे। क्या क्या काम होते थे वहाँ? ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक यूटिलिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, केयर ऑफ फॉरेनर्स एंड sanitation. There was a sophisticated civil service which supervised matters ranging from public welfare to foreign trade. Now, society. Both Megasthenes and Kautilya tell us about the Mauryan society. According to Megasthenes, the upper class, Brahman, Kshatriya and the Vaishya continued to enjoy their privileged position. Majority of the people जो थे वो farmer थे, कुछ लोग soldiers भी थे, harder man का काम करते थे, कुछ artisans थे and कुछ migrators भी थे. People of all castes live together peacefully, और हर एक caste के जो लोग थे वो peacefully एक साथ रहते थे. Economy. Mauryan time में the administration helped economic development. The Greek author Megasthenes had praised the system. The administration helped villages by clearing forest area and starting new settlement. Dams and water reservoirs were built to regulate irrigation in the field. Industries were developed and promoted through guilds. The guilds guided craftsmen and helped them in the production and protected in case of any risk. The chief of guild was called Jesthaka. These guilds have their treasury full in the time of Ashoka. जितने भी गिल्ड थे यानी जो क्राफ्टमैन के ग्रुप थे वो हमेशा ट्रेजरी से भरे रहते थे अशोका के टाइम पर। उनका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना और वो लोग क्या करते थे, डैम्स एंड वाटर रिजर्वर भी बनाते थे जहाँ इरिगेशन की ज़रूरत होती थी। उस टाइम जो अशोका के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत ही डेवलप्ड था। Now, taxes. Land revenue was the main source of income for the government. It was fixed between 1/4 and 1/6 of the produce depending upon the fertility of the soil. Land revenue main source of income था उस टाइम पे गवर्नमेंट का, और वो फिक्स होता था या तो 1/4 और या फिर 1/6, डिपेंड करता था कि कितनी फर्टाइल सोइल है और कितनी वहाँ पर प्रोडक्शन हुई है। अर्थशास्त्र also mentioned a water tax and a road tax. Other sources of income for the state included forest, mines, trade,
crafts and customs duties on import. The king also received tributes in kind from different part of the empire. और किंग को और भी काफ़ी गिफ्ट मिलते थे दूसरे एम्पायर से. जो मनी कलेक्ट करते थे वो आर्मी को मेंटेन करने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए, और जो भी वहाँ पर एम्पायर में बिल्डिंग वर्क होता था, रोड बनते थे, हॉस्पिटल बनते थे, उसके लिए यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट इज एडुकेशन. एडुकेशन अशोका के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई थी. एंड पढ़ाना किसका काम होता था? ब्राह्मण्स का काम होता था. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी जो एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम करती थी. फेमस एडुकेशनल सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन तक्षशिला, उज्जैन एंड वाराणसी. नेक्स्ट इज आर्मी. Mauryan army was massive and was commanded by the सेनापति. According to Pliny, a Roman writer, उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, 30,000 कैवलरी थे और 9,000 एलिफेंट्स थे. Another source tells that the Mauryans maintained 8,000 chariots. Next is spy system. The Mauryan kings maintained an efficient spy system. Spies, many of whom were women, were posted in different parts of the country. They informed the king about the development within the kingdom and outside, and also about public opinion on important issues. स्पाई सिस्टम बहुत फेमस था उस टाइम. जो मौर्यन किंग थे उन्होंने स्पेशली वीमेन को अलग अलग देशों में एज ए स्पाई भेज रखा था, जो उन्हें पूरे वहाँ पर किंगडम की और बाहर क्या हो रहा है या उनके बारे में लोगों के क्या ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें बताते थे. आर्किटेक्चर. The Mauryan Mauryans built many stupas, vihars and pillars. The stupa was the most important element in the architecture. It was derived from the ancient funeral mounds made of the earth and brick that preserved the remains of the monks and other important persons. The stupa at Sanchi near Bhopal, known as the Great Stupa, is the most popular stupa amongst all. King Ashoka built more than 80,000 stupas. Stone pillars with beautifully carved animals called capital on top were famous. And the most famous pillar is at Sarnath near Varanasi. Here is the lion capital at Sarnath, and that is adopted as national emblem in India. The wheel we find in the middle of our national flag is also taken from the Ashokan edicts. Now, decline of the Mauryas. The main reason for the decline of the Great Mauryan Empire was the disorder which emerged after the death of Ashoka in 232 BC. His successors were weak and could not handle the affair of the state efficiently. The huge expenditure incurred on maintenance of the army became a burden on the royal industry. The invasions in the northwestern border of India added to the unrest. अशोका के बाद जो भी नेक्स्ट सक्सेसर आए वो बहुत ज़्यादा वीक थे. वो इतना जो स्टेट के जो मैटर थे एफिशिएंटली उनको हैंडल नहीं कर पाए. दूसरा, जो इतनी ह्यूज आर्मी अशोका ने मेंटेन कर रखी थी वो उनको मेंटेन नहीं कर पाए. एंड जो इन्वेशन आक्रमण हो रहे थे इन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, उनसे भी जो मौर्य एम्पायर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. इन 185 BCE द लास्ट मौर्यन रूलर Bridratha was assassinated by his commander-in-chief Pushyamitra Sunga, who later laid the foundation of the Sunga dynasty. और 185 BCE में जो लास्ट मौर्यन रूलर थे बृद्रथा, उसको पुष्यमित्र सुंगा ने मार दिया था और उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सुंगा डायनेस्टी. अशोका was one of the greatest emperors in the annals of history. He spent his life working for the welfare of his subjects. He was the first king to promote non-violence and tolerance. अशोका, जो कि हिस्ट्री में आप जानोगे अशोका द ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों को अपनी प्रजा के वेलफेयर में, उनकी देखभाल में उन्होंने निकाल दी. एंड ही वॉज द फर्स्ट किंग जो नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस को प्रेफर करते थे. नाउ कम टू द की पॉइंट्स.
Chandragupta Maurya established the Mauryan Empire in 321 BC. He was helped by Chanakya, his prime minister. Ashoka was the greatest ruler of the Mauryan Empire. Kalinga War was the first and the last war he fought. His suffering and the killings of the people in the war had a great impact on his life. Instead of killing people, he set out to conquest their hearts by following Dhamma. कलिंगा वार ने अशोका के नेचर को बिल्कुल चेंज कर दिया था और उन्होंने लोगों किलिंग ऑफ पीपल को अवॉइड करके एक नई चीज़ शुरू की जिसको धमा कहा गया. वी गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट द मौर्यन थ्रू वेरियस सोर्सेज. अमंग देम वर द इंडिका बाय मेगस्थीन एंड अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, बुद्धिस्ट एडिक्ट रिटन ऑन पिलर्स एंड रॉक्स बाय अशोका. इस अशोका के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे पास और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है. आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू 6 ब्रांचेस. दे वर कैवलरी, इन्फेंट्री, चैरियट्स, एलिफेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड नेवी. एक ह्यूज आर्मी थी मौर्यन एम्पायर के पास जिनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था. अशोका इशूड एडिक्ट्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा. धमा का मैसेज लोगों को पहुंचाने के लिए, दैट इज नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस फॉर द रिलीजन्स, इस मैसेज को कॉमन पीपल तक पहुंचाने के लिए अशोका ने एडिक्ट यानी कि रॉयल ऑर्डर निकाले थे. अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर अशोकाज रूल द मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एंड वॉज ओवरथ्रोन बाय द सुंगास. 50 साल, करीबन 50 साल के अशोका रूल के बाद मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया और उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी आई? सुंगास डायनेस्टी. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.